Good morning, dear students. Today we are going to discuss our history lesson number 4, the making of global world. We have studied some part of this chapter in previous videos. Now we are going to start this chapter from page number 92 and the title Interwar Economy. Sir, what do you mean by interwar economy? You know that First World War started in 1918 and it ended in 1918. It was mainly fought in Europe, but the effect of the First World War were realized all over the world. Dear students, we would also study that it plunged, or the First World War was the cause, or it became the reason for plunging the first half of the 20th century into a large economic crisis that took 3 decades or 30 years to overcome the problem. During this period, the world, or during the Great Economic Depression, the world experienced a lot of economic and political instability, and it was also the result of Second World War. Okay, wartime transformation or the changes which took place during the First World War. You know that First World War was fought into two power groups. One was the Allied or Allies, Britain, France and Russia. Later in 1917, America was also their part. While in Central Powers, Germany, Austria, Hungary and Turkey, these were the countries which were the part of Allied powers. When the war began in August 1914, all the governments, all the countries which were engaged into war thought that it would be ended up to Christmas or would ended up to December 1914. It means they thought that it would be for 4 months, but it was for 4 years. The First World War was a war. ये एक ऐसा वार था, ऐसा वार कभी नहीं हुआ. द फाइटिंग, इस वार में इंडस्ट्रियल कंट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीज वर इंगेज, सो दे यूज्ड harnessed used the big powers of modern industry to put greatest destruction over the enemies. This war was the first industrial war. First World War also known as the first industrial war. Sir, why? Because in this war, machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons were used in a lot of number or at large scale. All these were produced into large scale industries or into big industries. The soldiers were recruited into the First World War from all over the world. They moved from appointment areas to the borders through the large ships and trains. 9 million people died. 9 million people died. 90 लाख लोग वार और वार रिलेटेड इश्यूज से मरे एंड 220 मिलियन 2 करोड़ लोग इंजर्ड हुए, जो कि बड़ा ही लॉस था. ड्यू टू वार जो मरने वाले लोग थे मोस्टली वर्किंग एज के लोग थे. डेथ्स भी, इंजरीज भी. इसके कारण वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो 15 to 59 एज ग्रुप होता है उसकी यूरोप में कमी हो गई. फैमिलीज़ में नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर डिक्रीज हो गए, जिससे फैमिली की इनकम घट गई. ड्यूरिंग द वार ईयर्स और ड्यूरिंग द 1914 to 18 इंडस्ट्रीज़ को रिस्ट्रक्चर किया गया. इंडस्ट्रीज़ को उस एक्टिविटीज़ में बिजी किया गया जो वार रिलेटेड आइटम्स प्रोड्यूस करते थे. सोसाइटी भी रीऑर्गेनाइज हुई. Men were engaged into battle while women took the job of field, like doing the job in factory and as well as work in fields. युद्ध के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज जो आपस में पहले पैसे का लेन देन करते थे, अमाउंट एक्सचेंज करते थे, उनके इकोनॉमिक रिलेशंस पुअर हो गए. ब्रिटेन ने अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका के बैंक्स और अमेरिका की पब्लिक से बड़ा पैसा उधार लिया. इस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका के ऊपर अदर कंट्रीज़ का लोन ज़्यादा था, इसलिए डेबिटर था. बट इसने वर्ल्ड वॉर के दौरान इतना लोन दिया अदर कंट्रीज़ को कि टर्न इनटू इंटरनेशनल डेबिटर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्ट वॉर रिकवरी. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इकोनॉमिक रिकवरी वॉज डिफ़िकल्ट एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्पेशली ब्रिटेन. ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन वर्ल्ड में बड़ा ही ऑक्यूपाइड पोजीशन में था. ब्रिटेन ड्यूरिंग द वार ईयर्स जो इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हो गई, जापान में हो गई. इंडिया में डेवलप होने के कारण ब्रिटेन वाज अनेबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और जापान में होने के कारण इट वाज
having heavy competition with जापान इन इंटरनेशनल मार्केट। ब्रिटेन ने वार लड़ने के लिए बड़े खुले मन से लिबरल वे से अमेरिका से लोन लिया। इस प्रकार उसके ऊपर बड़ा अमाउंट लोन का था। वार के कारण इकोनॉमिक बूम भी आया। ड्यूरिंग द वार ईयर्स देयर वाज डिमांड ऑफ प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड, जॉब बहुत हुई। बट जैसे ही वार एंडेड हुआ, प्रोडक्शन की डिमांड घट गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए। डिफरेंट कंट्रीज जो वार में इंगेज थे, उन्होंने अपना वार प्रोडक्शन, वार से रिलेटेड जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा था, उसे पीस टाइम जितना, साधारण समय जितना घटा दिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए। दोज कंट्रीज विच वर और दोज सोसाइटीज और इकोनॉमीज विच वर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, दे वर वर्स्ट इफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल व्हीट प्रोड्यूसर्स, ईस्टर्न यूरोप जैसे रसिया जैसे देश जो ड्यूरिंग द वार ईयर्स वर्ल्ड मार्केट के लिए फूड ग्रेन सप्लाई करते थे। जैसे ही वार ख़त्म हुआ, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में वार के दौरान बड़ा एक्सपेंशन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में घट गया। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में दोबारा स्टार्ट हो गया। इसके कारण फूड ग्रेन्स के प्राइस फेल हो गए, विलेजेस की इनकम डिक्रीज हो गई, फार्मर्स कर्जे में फंस गए। देन राइज ऑफ मास प्रोडक्शन। बेटा मास प्रोडक्शन के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से रिकवरी की। अमेरिका की रिकवरी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में बड़ी तेज़ी से हुई। अब देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमी थी 1920s में मास प्रोडक्शन आ गया। मास प्रोडक्शन में क्या था? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। मास प्रोडक्शन का जो पाइनियर है, फेमस पर्सन है, वो हेनरी फोर्ड, एक कार मैन्युफैक्चरर। उसने अपना मास प्रोडक्शन कार का जो प्लांट लगाया वो डेट्रॉइट में लगाया, अमेरिका में। उसने ये कंसेप्ट शिकागो के स्लेटर हाउस से लिया। यहाँ पे जो असेंबली लाइन थी उसके ऊपर हर वर्कर का वर्क डिसाइडेड था। एक वर्कर एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता था, उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। बट वो अपने फ्रेंड के साथ कोई फ्रेंडली टॉक में या कोई ब्रेक लेके या कोई फ्रेंडली बातचीत करने में टाइम डिले कर नहीं कर सकता था। और पहली मास प्रोडक्शन जो कार थी वो टी मॉडल 4 कार थी। बट हेनरी फोर्ड का जो ये सिस्टम था, इसमें वर्कर्स के ऊपर बड़ा स्ट्रेस आया। वो अपने काम के साथ स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने तनाव में आके, डेस्परेट होके तनाव में आके जॉब छोड़ दी। हेनरी फोर्ड भी दबाव में आया। उसने जनवरी 1915 में पर वर्कर डेली $5 सैलरी कर दी। बट उसने वर्कर्स को कहा, डबल कर दिया ये, वर्कर्स को कहा कि वो ट्रेड यूनियंस नहीं रखेंगे, वर्कर्स यूनियन नहीं रखेंगे जहाँ भी उसके कार प्लांट्स हैं या अदर प्लांट्स हैं। इससे हेनरी फोर्ड के डबल वेजेस करने से वर्कर्स दोबारा वर्क पे आए। उन्होंने अच्छा पैसा मिलने से पूरे मन से काम किया और उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। उसने अपने इस डबल रेट वाले सिस्टम को बेस्ट कॉस्ट कटिंग सिस्टम का, फोर्ड का जो सिस्टम था, हेनरी फोर्ड का सिस्टम, ये पूरे अमेरिका में ऑक्यूपाई हुआ। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट घट गई। हाई वेजेस के कारण जब मजदूरों की हाई वेजेस हुई तो बेटा वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लाइक द फ्रीज, टीवी, कार मेंटेन कर सकते थे। उससे भी अब लोगों के पास घर की डिमांड भी, ये सब चीज़ें हायर एंड परचेज थी, अर्थात EMI सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे थी। अब ये जब कार मशीन वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह आपके पास है तो हाउसिंग सिस्टम भी बढ़ा। हाउसिंग सिस्टम भी हाउस लोन के द्वारा आगे बढ़ा, जिसको आगे बढ़ाया गया। बट ग्रेट डिप्रेशन आया। बेटा ग्रेट डिप्रेशन केम इन द डिकेड ऑफ 1930s और ईयर 1929, और ये मिड 1930s तक रहा। बट इसका ड्यूरेशन और टाइम 1929 to 1935 के बीच में डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग था। ड्यूरिंग दिस टाइम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिक्रीज्ड, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, इनकम डिक्रीज्ड, ट्रेड डिक्रीज्ड। जो कंट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, जो सोसाइटीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, दे वर द वर्स्ट इफेक्टेड बिकॉज दे वर अनएबल टू सेल दियर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इस प्रकार देयर वर मेनी फैक्टर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन वर्ल्ड। फर्स्ट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। यू नो दैट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक रसिया यूरोप के लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे। बट रशिया वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ अलाइड कंट्रीज, सो रशिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हुआ। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एशियन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ। बट जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ हुआ,
रसिया में दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जिसके कारण गुड्स का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया और सेल थी वो सेम रही, इसके कारण और प्रोडक्शन, देन और प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द लोन टेकन बाय अमेरिका से जिन लोगों ने लोन लिया था उनसे अमेरिका ने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के फर्स्ट इफेक्ट्स आने लगे, उसने मांगना शुरू कर दिया। इट वॉज क्वाइट ईजी टू टेक लोन फ्रॉम अमेरिका व्हेन थिंग्स वर गुड, बट जैसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आई अमेरिका ने मांगना शुरू कर दिया। थर्ड, अमेरिका का जो तीसरा, ड्यूरिंग द वार ईयर्स, थर्ड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द वार ईयर देयर वाज ग्रेट डिमांड ऑफ वार रिलेटेड आइटम्स, बट जैसे ही वार ख़त्म हुआ इन चीज़ों की जो डिमांड थी, इन चीज़ों का जो सिस्टम था वो घट गया, और डिमांड घट गई, प्रॉब्लम्स आ गई, अमेरिका का खुद का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। What were the effects of great economic depression on India? You know that India's economy was based on agriculture and society was based on agriculture, और वो कंट्री जो एग्रीकल्चर पे थे वो बुरी तरह प्रभावित हुई। 1928 में जो एग्रीकल्चर का रेट था वो 1934 में 50% तक गिर गया। पीजेंट्स जो थे वो ज़्यादा सफ़र हुए नहीं कि सिटी वाले लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस बुरी तरह गिर गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया ने लैंड रेवेन्यू घटाने से मना कर दिया, और जो फार्मर्स वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे वो बुरी तरह मारे गए। वीट के रेट 50% तक गिरे, जूट के रेट 60% तक गिरे। यू नो दैट देयर वाज ग्रेट डिमांड ऑफ जूट फॉर मेकिंग द पैकिंग्स, बैग्स वगैरह, बट वो बर्बाद हो गए। इंडियन फार्मर्स ने अपने कर्जे को चुकाने के लिए, लोन को चुकाने के लिए जितने भी सेविंग्स थी या अपनी मॉर्टगेज लैंड, गिरवी रखी हुई ज़मीन को छुटवाने के लिए जो भी ज्वेलरी, गहने वगैरह थे वो बेच दिए। जॉन मेनर्ड केन्स नाम का एक इकोनॉमिस्ट हुआ है, उसने कहा कि इंडियंस ने जो गोल्ड और सिल्वर अपना सेल किया अपनी एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, उसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बाहर आने में मदद की। जब ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसी दौरान भारत में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था 1930 में, जो कि 1931 में अपनी हाइट पे था, अर्थात बहुत आगे बढ़ रहा था। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टडी द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।